Hello my dear students, welcome to the next part for the maths chapter number 1 integer. In this part we will start our exercise number 1.3. Up to here we had completed exercise 1.2, so let's start the exercise 1.3. Let me recall you one thing that up to here we had studied the addition and subtraction, okay, with the help of DAMAS, D-M-A-S, division, multiplication, addition and subtraction. Now in the exercise 1.3 we will start the DAMAS only, but with the multiplication and division. उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएंगे, उसमें डिवीजन भी होगा, उसमें एडिशन भी होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा. ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत मजा आएगा. देखिए, pay attention over here. Okay, so first question number 1. What is question number 1? The question number 1 is A, that is 3 multiplied by bracket minus 1. Now over here we have to multiply two integer, we have to multiply. See, there is a middle number, there is a multiplication sign, and 3 is positive and here 1 is negative. Clear? I explain you minus minus plus plus minus 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 plus minus and plus plus plus. I already told you इसको कैसे याद करते हैं. देखिए इन दोनों में माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा. इसमें माइनस माइनस है तो उसका उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव. इसमें दोनों प्लस है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा. तो यू टू कीप इन योर माइंड दिस एंड दिस, दैट विल बी हेल्प इन फॉरवर्ड क्लास ऑल्सो. जो आगे वाले क्लास आने वाले 8, 9, 10, 11, 12 जब आप मैथ्स पढ़ोगे जब तक तब तक ये आएगा ही. ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा. नाउ हाउ वी विल मल्टीप्लाई. सो वी नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई द एनी नंबर. यस और नो? ओके, सो 3 1s are 3. टेबल भूल गए हो तो यू नीड टू प्रिपेयर अ टेबल ऑल्सो. 3 1s are 3 भूल गए हो तो नहीं चलेगा, टेबल ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. Okay, 3 1s are 3. Here is a minus sign. Yes, and here is nothing. Here is nothing. That means there is a plus sign. Okay, so minus plus minus, minus plus minus. This is your answer. Pazala. Now B1 you can do it by yourself. C, let's come on C. Minus 21 multiply by minus 30. देखिए अब यहाँ पे minus 21 multiply by minus 30. That means there is a middle number, there is a multiply. That means we understand that we have to multiply both the number. Clear? So how we will multiply? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे. देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 30, 21 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट मीन्स देयर इज 0. तो आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग 0. ओके, आई एम टेकिंग 0 ओवर हियर एंड आई एम मल्टीप्लाई ओनली 3. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 0 I am taking here. So my answer is 630. After multiplication of 21 multiplied by 30, 21 मल्टीप्लाई 30 करने के बाद मुझे आंसर मिला 630. अब क्या करना है? साइन को देखिए, साइन को मल्टीप्लाई करनी है. हियर इज माइनस, हियर इज ऑल्सो माइनस, सो माइनस माइनस प्लस. करेक्ट? ओके, हियर इज अ प्लस साइन. इफ यू आर राइटिंग देन इट्स ऑल्सो ओके, इफ यू आर नॉट राइटिंग देन इट्स ऑल्सो ओके. तो पता चला कैसे करना है. ओके, सो I had to do A and B for you. Now D1 is also easy. E and F. क्या करना है? E करते हैं. E वाला करते हैं. E वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए 15 which is in minus multiply by 0 multiply by minus 18. Now students, you know very well that anything multiply by 0, multiply, only multiply, the answer will be 0. 0 1s are 0, 0 50s are 0, 0 thousands are 0, 0 crores are 0.
So 0 multiplied by minus 15 or 0 multiplied by minus 18. Your answer will be 0 only. And 0 not will be negative, 0 is not a positive, 0 is 0. ओके आपको कुछ भी नहीं लिखना इसमें ना नेगेटिव साइन लगा ना पॉजिटिव, 0 को 0 रख देना है. क्लियर? ओके. कमिंग ऑन टू F. -12 multiply by -11 multiply by only 10 plus 10, that is a plus 10. Okay, great. So what we have to do over here? We have to multiply. That I already told you. ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे. तो आई थिंक आई विल मल्टीप्लाई दिस टू फर्स्ट. कि ये दोनों को पहले कर लेता हूं, क्या बोलते हो? ये दोनों को पहले करूं, ये दोनों नजदीक में, इन दोनों को पहले कर लेता हूं क्योंकि ये 0 वाला है ना, तो क्या होगा 1 1 0 हो जाएगा इजीली, सिंपल. ठीक है, सो लीव इट -12 एज इट इज, मल्टीप्लाई साइन एज इट, मल्टीप्लाई दिस बोथ. इजी, जितना इजी हो उसको पहले लो मल्टीप्लाई करने में. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मींस माय आंसर इज 110. कुछ भी करना नहीं, 0 को साइड में रख दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 आएगा. तो 0 को फिर से यहां पे लगा दो. ठीक है, ब्रैकेट लगा दो. अब नाउ देयर इज अ माइनस साइन, हियर इज अ प्लस साइन ब्रैकेट में. तो 10 के पास कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस, सो राइट हियर माइनस. हो गया. नाउ मल्टीप्लाई 12 विथ 110. 12 with 110, that means 12 multiplied by 110. 0 I am leaving साइड में रख दे रहा हूं मैं, 0 बी साइड में. now multiplying 12 multiplied by 11, that means my answer is 213. कैसे हुआ चेक करते हैं इसको यहां पर अच्छे से मल्टीप्लाई करके. 1 2 11 11, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 1. राइट, आगे आंसर देखिए, मैंने डायरेक्टली कर दिया था, मैंने देखा नहीं था. इसकी ट्रिक है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 11, योर आंसर विल बी ऑटोमेटिकली विल बिकम. सो आई विल मेक यू स्टडी. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस मच. सो माय आंसर इज 132. 132. And one thing also, we had keep 0 aside, so I will take that 0 over here. Yes, now minus plus, so no need to write anything, this is plus. आ गया, कितना इजी है, सिंपल हुआ ना. Okay, now moving on to the next question, that is G. You will do it by yourself. Okay, H you can do it by yourself because I explained 2 sums similar to that only. I is also similar to G and H, all the sum is similar. Okay, so if you practice more, you will be aware of more about these sums. ठीक है, so remaining sum you have to do it by yourself. I had A, C, E, F I had done for you, and remaining sum you have to do it by yourself. So we will move forward. So write down this much. Now student, coming on to the question number 2 for the exercise number 1.3. The A question is 18 multiplied by bigger bracket 7 plus minus 3 in small bracket, then after bigger bracket equal to the right hand side, that is 18 7s plus bigger bracket 18 multiplied by minus 3 in bracket and bigger bracket. So we have to verify this following, that is it LHS is equal to RHS, is it right or wrong? So let's start to verify this. So this is my LHS side. What is LHS side? 18 multiplied by 7 plus minus 3. देखिए, अभी one thing you have to keep in your mind, that you have to divide. Is it possible to divide according to this slogan DMAS? No, it is not possible to divide. तो डिवाइड वाला कुछ दिया ही नहीं है.
मल्टीप्लाई, हाँ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7, 18 मल्टीप्लाई बाय -3. So first of all we will multiply one by one. First of all 18 multiply with 7, then 18 will multiply with -3. How we will write? See here, 18 sevens are, close the bracket, plus sign right here. Now 18 minus 3 are, so bracket 18 into -3. देखिए मल्टीप्लाई कर लिया मैंने. अब एक्चुअल मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एक्चुअल मल्टीप्लाई. देखिए अब देखिए यहाँ पे आरएचएस साइड मेरे को पहले से ऐसा दे दिया, 18 7 जा प्लस 18 into -3. This is my RHS and this is my LHS. After I simplify, अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा, पर दोनों सेम ही होंगे. क्यों? क्योंकि RHS साइड में पहले से वैसा ही दिया है और LHS साइड में मैंने ऐसा लेके आया. So from this I can say that my LHS is equal to RHS. But यहां तक पहुंचे तो आगे तक सोल्व कर लेते हैं, सिंपल लेके आते हैं. कैसे करेंगे देखते हैं. यहां से पता चल गया मेरा LHS इक्वल टू RHS है, तो फिर भी इसको सिंपल करते हैं. 18 7 जा, ठीक है, 7 8 जा 56, 8 9 10 11 12, 126. ओके, 126 प्लस, leave it in bracket only. Thereafter 18 3 z 54. Clear? Plus minus minus, leave it in bracket. 18 3 z 54 है ना, और प्लस माइनस 18 के पास साइन कौन सी प्लस है, 3 के पास कौन सी साइन है माइनस की, प्लस माइनस और इसमें से माइनस प्लस, -54. नाउ वी विल रिमूव द ब्रैकेट. 126 प्लस माइनस -54 हुआ. So we will get our answer, that is 126 minus 54. 6 minus 4, that means 2, 12 and over here 0. So 6 7 8 9 10 11 12, that is 7. So my answer is 72 on LHS side. कहाँ पे मिला मुझे वो? LHS साइड में मेरा आंसर 72 मिला. तो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन मैंने किया, जो RHS साइड में दिया है उसका आंसर 72 मिला, तो RHS साइड भी मेरा आंसर 72 ही मिलेगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सो हेंस इट इज, लिख दो यहाँ पे, हेंस इट इज वेरीफाई, है ना. ओके, कितना इजी है, पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस करो, देन सब्ट्रैक्ट करो. देख लो इतना इजी है. नाउ नंबर बी आई एम गिविंग टू यू बिकॉज प्रैक्टिस इज नीडेड. सो बी इज इन योर होमवर्क. नाउ स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस मच सो आई कैन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेट मी रब दिस. ओके, यू नो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, अब मैं रब कर देता हूँ, ये जगह नहीं है मेरे पास, है ना, लिखना है, आपको समझाना भी है. सो इन क्वेश्चन में देयर आर 2 क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी इंटीजर a, what is -a multiplied by a equal to -1 multiplied by a is equal to, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा. So as I know that anything multiplied by 1 will be anything. Okay, so a multiplied by 1, that means a. 5 multiplied by 1, that means 5. 100 multiplied by 1, that means 100 only. So any integer multiplied by 1, that means that will be integer, will become. So a multiplied by 1, that means a. But here is 1 is in minus. Okay, and a is plus. अब a के पीछे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, that means plus. So plus minus minus, yes. So my answer is -a. Okay. Now coming on to the next question, that is number 2 question. So number 2 question, I have 3 question, that is a. First question is, yes, here we have to multiply -1
we have to multiply -1 with other number, that is -22. What is the answer if I am multiplying -1 with a given integer? So -1 one by one we will do. -1 multiplied by -2, that means anything multiplied by 1, that means anything. So 22 here is 1. The 22 ones are 22. Now we will focus on sign, plus or minus. So minus minus plus. So no need to write over here anything. It is plus only. B1. 37. So -1 multiply by 37. So similar to first one, a multiply by -1, that means minus a. So over here 37 multiply by -1, it will be -37. Clear? Number C. -1 multiply by 0. Anything multiply by 0, your answer will be 0. बाद में साइन देखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस है या माइनस है. समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है. आपको मैं जिस तरीके से कर रहा हूं ना, बहुत इजी है. ठीक है? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नो नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, leave it question number 4. We will come on to question number 5. Find the product using suitable properties. Okay, we will find go through question number 5. Before that, write down this much. इतनी मेहनत की लिख लिए. Now student, coming on to the question number 5, that is find the product using suitable properties. Okay, these properties you had already studied in standard 6. Commutative property, distributive property, associative property for multiplication, division, addition. Okay, this we have to apply over here. So first sum, that is 26 multiplied by -4, 48 in bracket. प्लस इज इन मिडल, ये दोनों तरफ दो दो नंबर है तो बीच में आ गया प्लस. देन आफ्टर -48 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय -36. सो व्हाट आई विल अप्लाई ओवर हियर? व्हिच प्रॉपर्टी आई विल अप्लाई? आई विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मैं यहाँ पे कौन सी अप्लाई करूंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं. दोनों जो पेयर है, दोनों जो नंबर है, उन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन निकल जाना है. दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए, उसको कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी के नंबर को ब्रैकेट में रखते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एक बार रिकॉल भी करवा दिया मैंने. सो अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव property. Okay, so -48 is common, so -48. Now take a big bracket. What is remain over here? Only 26, right? 26 plus sign as it is. What is remain over here? Only -36. हो गया. Now what we will do? We will multiply. But we had removed the number, so we will now not multiply. We will solve this much. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई ना यहाँ पे. तो 26 प्लस माइनस -36 देख लीजिए. 26 -36 पॉसिबल है? यस पॉसिबल है. प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 36 -26. माई आंसर इज 10. But 36 bigger number, so sign of bigger number is 10. So my answer is -10 multiplied by -48. देखिए, so -48 multiplied by -10. That means 48 tens are 480 only. Minus minus plus. So no need to do anything with it. ये हो गया नंबर A. कितना इजी है देखिए. आप प्रॉपर्टी सब पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार रिकॉर्ड करवा दे रहा हूं मैं. ठीक है, पढ़ते पढ़ते. कमिंग ऑन टू द B. व्हाट इज B? दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 53. ओके, देन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 125. बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया यहाँ पे.
तो फिर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना बोला है ना। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 8 है, सो मल्टीप्लाई बोथ देम। 8 मल्टीप्लाई बाय मींस आई एम रीअरेंजिंग द मल्टीप्लिकेशन नंबर, शॉर्ट में बोलो तो 125। सो दिस इज कॉल्ड ए, अगर मैं जब मल्टीप्लिकेशन को रीअरेंजमेंट करता हूं ना, उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। If I am rearranging the multiplication number, सिर्फ रीअरेंज किया ना मैंने, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट की साइन लगा देता हूं, देखिए अभी लगाऊंगा मैं, 8 मल्टीप्लाई बाय -125 एंड बिगर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 53, that if I am using this big bracket, that I am using a associative property। देखो एक ब्रैकेट लगाने की वजह से मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जा रही है यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी का नाम लग रहा है। कैसे प्रॉपर्टी का नाम लगाना है? अगर मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, बस इतना याद रखना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 125, 8 मल्टीप्लाई बाय 125, दैट मींस माय आंसर इज 1000। Clear? But here 8 is plus, whereas 125 is minus, that means plus minus minus. Multiply by 53. Now 1000 multiply by 53, that means 53,000. 1 2 3 तीन जीरो पीछे लगा दिए 53 के, माइनस प्लस माइनस, so minus 53,000 is my answer. Okay students, now students A and B I have solved for you. Clear? कमिंग ऑन टू सी, सी देखिए, सी भी बहुत इजी है, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। 53 मल्टीप्लाई बाय 25, देन -4 मल्टीप्लाई बाय -10, सो यू विल गेट योर आंसर। डी इज वेरी इजी, ई इज ऑल्सो वेरी इजी। ई में क्या करना है? 625 को कॉमन बाहर निकाल लेना है। सो एक सम्स करते हैं, देख लीजिए। चलो तो ये कर लीजिए, तब तक मैं रब कर लेता हूँ, आप लिख लीजिए। Now coming on to number C, students, that is 15 multiplied by -25 multiplied by -4 multiplied by -10. This is C, okay, of question number 5. So I am applying associative property. देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है आपको, कॉमन निकालना, तो यहाँ पे कॉमन पॉसिबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? आपको रीअरेंज करना है, पॉसिबल है, रीअरेंज तो कर सकते हो, जो इजी वाला नंबर है उसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसका मतलब कम्यूटेटिव लो हो गया। एसोसिएटिव लो मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कोई भी दो नंबर को साथ में ले लो, इजी वाले को, उसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे -25 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे -10 है, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये दो जो बीच में नंबर है उसको मैं ब्रैकेट में रख दे रहूंगा और मल्टीप्लाई की साइन लगा दूंगा। -25 मल्टीप्लाई बाय -4, देख लीजिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक बॉक्स बना लिया, ये दो नंबर बीच में है, मल्टीप्लाई बाय -10। So this is called associative property. Okay, so first of all we will multiply this. 25 4s are 5 4s are 20, 0 4 2s are 8 plus 2 that means 10. तो क्यों किया मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई? क्योंकि इन दोनों का आंसर 100 में आ रहा है, जीरो वाले नंबर में आ रहा है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, नो नीड टू ऐड एनी साइन, मल्टीप्लाई बाय -10. सी ओके, नाउ I will removing this bracket क्योंकि माइनस में नहीं है तो ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है। Now I have three numbers. Again I am applying associative property on both these numbers. So 15 multiply by bracket 100 multiply by -10 और फिर से ब्रैकेट लगा दिया, फिर से associative property लगा दी यहाँ पे। Okay. So 100 multiplied by 10 that means 1000. Okay, great. 1000 minus plus minus and here is a 15.
Now 15 multiplied by 1000, that means 15,000. Plus minus minus, my answer is minus 15,000. देखिए कैसे हो रहा है, फटाफट हो रहा है ना. Now students, coming on to the number D. Here in number D there is a two number only, minus 41 minus 41 multiply by 102. सो नॉर्मल पर्सन होगा तो वो क्या करेगा कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. प्रॉपर्टी लगा दियो, प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, आंसर सिंपल में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग को लोड देने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, तो आप सोचोगे यार यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, लगाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फायदा तो कुछ हुआ नहीं इस प्रॉपर्टी का. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर को रीअरेंज करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगाने का फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, एक प्रॉपर्टी लग सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वन प्रॉपर्टी विल बी अप्लाई ओवर हियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हाउ यू विल अप्लाई, सी is 41 which is minus, multiply sign as it is. What I will do, see 102 कैसे होता है, 100 plus 2 that means 102. अप्लाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर. देखिए अब क्या हो गया, 41 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. अब आपको 41 को 102 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको 41 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. देखते हैं कैसे करते हैं. 41 मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल विथ 100, देन इट विल मल्टीप्लाई विथ 2. सो साइन ऑफ प्लस विल बी अप्लाई ओवर हियर, then after minus 41 multiply by 2. So 4100 is 4100 plus minus plus minus plus sign over here. 41 2 is 2 1 is 2 2 4 is 8 plus minus plus minus. Okay, minus 4100 plus minus minus 82. अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अभी डायरेक्ट प्लस माइनस ही करना है. ठीक है, minus minus plus, so that means I have to add both the number. So 4100 plus 82, that means my answer is 4182. Okay, 4182. Which number is bigger in both the number? 4100. Sign of 4100 is minus, I will write here minus. So my answer is minus 4182. Easy na? Okay. D1 I have solved for you. Okay, students, I had solved 4 sums with 3 properties. Okay, distributive property, commutative property and associative property. आगे वाले जो सम है E, F, G and H, that you will do it by yourself. देखिए E वाला क्वेश्चन है, उसमें 6 to 5 दोनों में है, तो कॉमन निकालोगे, that means you are applying the commutative property. Afterward F है, F में पहले से कॉमन दिया हुआ है, तो वहां पे भी आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहां पे भी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर G, G में क्या दिया है, 17 माइनस 17 मल्टीप्लाई है माइनस 29. ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो. कैसे लगाओगे, 29 को 30 माइनस 1 कर दो. 29 is equal to 30 minus 1. In place of 29 you will write the 30 minus 1. That means then after 17 multiply by 30 and then minus 17 multiply by 1. There it become distributive property. Okay, then after G तो समझ लिया. अब H में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए. वहां पे क्या 57 दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लीजिए. मतलब 57 को कॉमन निकाल रहे हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1 हो जाएगा.
ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, 4 वाले दिए, जो 4 क्वेश्चन दिए बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो आप बेटर बनोगे मैथ्स में। वैसे मैथ्स बहुत इजी है, सिर्फ आपको फोकस से समझना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।